کھل کر بات کرو ماسٹر، یہ انتہائی اہم اور نازک مسئلہ ہے، ہاورڈ نے اس بار قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ جناب، مجھے معلوم ہے کہ عمران کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 200 میں اپنے باورچی سلیمان کے ساتھ رہتا ہے۔ میرا ایک خاص آدمی والٹر ہڈسن ہے۔ اس کی شخصیت انتہائی وسیع اور شاندار ہے اور وہ ہے بھی ایک ریمین۔ اس کی انگلی میں ہر وقت اسکارپین رنگ موجود رہتی ہے۔ وہ اس اسکارپین رنگ کی مدد سے کسی بھی آدمی کو بے ہوش اور ہلاک کر سکتا ہے۔ وہ ایسا سینکڑوں بار کر چکا ہے۔ اسے کوئی نہیں جانتا۔ میں اسے عمران کے فلیٹ پر بھیج دوں گا۔ عمران لازماً اس کی شخصیت اور وجاہت کی وجہ سے اس سے ملاقات کرنے پر آمادہ ہو جائے گا اور والٹر ہڈسن جیسے ہی عمران سے مصافحہ کرے گا، اسکارپین رنگ کی مدد سے ایک لمحے میں بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے باورچی کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے یا بے ہوش کیا جا سکتا ہے اور پھر عمران کو وہاں سے اٹھایا جا سکتا ہے اور اسے میرے ایک خصوصی اڈے پر پہنچایا جا سکتا ہے جہاں آپ اس سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، ماسٹر نے کہا۔ تجویز تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن کیا وہ والٹر ہڈسن اس میں کامیاب رہے گا؟ ہاورڈ نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں جناب، یہ انتہائی سادہ سا کھیل ہے، اسی لیے عمران اس سادہ کھیل میں شکست کھا جائے گا، ورنہ اگر اس کے خلاف کوئی پلاننگ کی گئی تو اس کا نتیجہ الٹا نکلے گا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، گڈ شو، تو تم فوراً حرکت میں آ جاؤ، میرا فون نمبر نوٹ کر لو، مجھے اطلاع دے دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ تمہارے خصوصی اڈے تک پہنچنے سے پہلے عمران کو کسی صورت ہوش نہیں آنا چاہیے، ہاورڈ نے کہا۔ ایسا ہی ہوگا جناب، دوسری طرف سے کہا گیا تو ہاورڈ نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ یہ ماسٹر کون ہے؟ فائل میں تو اس کا نام موجود نہیں ہے، گوسٹی نے پوچھا۔ فائل میں تو راجر اور انتھونی کے نام ہے اور میرا ارادہ تو دونوں سے کام لینے کا تھا، لیکن میں نے پھر ارادہ بدل دیا کیونکہ ان کا تعلق براہ راست ریڈ ایجنسی سے ہے، اور اگر عمران کو معلوم ہو گیا کہ ریڈ ایجنسی ان کے خلاف کام کر رہی ہے تو پھر لامحالہ اس نے ان دونوں کی نگرانی بھی کرائی ہوگی، جبکہ ماسٹر کا تعلق کارمن سے ہے اور اس کا ہر گروپ کام کرتا ہے، اسی لیے اس پر کسی کو شک نہیں پڑے گا، جبکہ یہ شخص انتہائی ہوشیار بھی ہے، ہاورڈ نے کہا۔ اگر یہ کارمن سے متعلق ہے تو اس نے تمہاری بات کیسے مان لی؟ گوسٹی نے کہا۔ اس کا تعلق بھی ریڈ ایجنسی سے ہے، لیکن کارمن میں ریڈ ایجنسی کے ذریعے، اور تمہیں معلوم ہے کہ کارمن میں ریڈ ایجنسی کے مستقل سیکشن کا انچارج ڈیسان ہے، اور ڈیسان کی وجہ سے ماسٹر سے مجھے ٹپ ملی تھی اور ڈیسان نے ہمارے بارے میں اسے پوری طرح بریف کر دیا تھا، ہاورڈ نے جواب دیا، تو گوسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا ہے کہ عمران کو اگر قابو کیا جا سکتا ہے تو احمقانہ اور بچکانہ انداز میں، ورنہ جس قدر عقل کا استعمال بڑھاتے جاؤ گے ویسے ہی عمران ہوشیار ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ سپر مائنڈ ہے، ہاورڈ نے کہا۔ عمران کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سچویشن کو جادو کے انداز میں بدل دیتا ہے، ایسا نہ ہو کہ جب ہم اس سے پوچھ گچھ کریں تو وہ سچویشن ہی تبدیل کر دے، گوسٹی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے ماسٹر کو کہا ہے کہ جب تک ہم وہاں نہ پہنچ جائیں، عمران کو ہوش نہ دلایا جائے اور اس کے نچلے جسم کو 6-1 انجیکشن سے مکمل طور پر بے حس کر دیا جائے۔ اس طرح یہ سچویشن تبدیل کر دینے والا خدشہ ختم ہو جائے گا، ہاورڈ نے کہا۔ اب آخری بات کہ کیا عمران واقعی تمہیں بتا دے گا کہ گروپ کہاں ہے؟ گوسٹی نے کہا۔ ہاں، یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ عمران جیسا شخص تشدد پروف ہوتا ہے اور اس سے اس کی مرضی کے بغیر کچھ معلوم نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی اس کے لاشعور کو مشین سے چیک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہیپناٹزم کے ذریعے اس کے ذہن سے کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میں عمران سے اپنے مطلب کی معلومات حاصل کر لوں گا، ہاورڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے؟ مجھے تفصیل بتاؤ، گوسٹی نے کہا۔ ابھی کوئی تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے، تمہیں وہاں حالات کے مطابق بتاؤں گا، ہاورڈ نے کہا، تو گوسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر تقریباً 1.5 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ہاورڈ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ہاورڈ نے کہا، ماسٹر بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ماسٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ ہماری سادہ سی ترکیب 100% کامیاب رہی ہے، عمران اس وقت میرے خصوصی اڈے پر بے ہوش پڑا ہوا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، تو ہاورڈ کے ساتھ ساتھ گوسٹی بھی چونک پڑی۔ کیسے؟ تفصیل بتاؤ، ہاورڈ نے کہا۔ والٹر ہڈسن فلیٹ پر گیا، اس نے کال بیل بجائی تو عمران کے باورچی سلیمان نے دروازہ کھولا۔ وہ اس کی وجاہت اور شخصیت سے بے حد مرعوب ہو گیا۔ عمران فلیٹ پر موجود تھا۔ والٹر ہڈسن اندر گیا اور پھر مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اسکارپین رنگ استعمال کر دی اور عمران فوری طور پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد والٹر ہڈسن نے سلیمان کو بھی ضرب لگا کر بے ہوش کر دیا۔ میرا گروپ باہر موجود تھا، چنانچہ اس سے عمران کو بے ہوشی کے عالم میں فلیٹ سے اٹھا لیا گیا اور میرے اڈے پر پہنچا دیا گیا، ماسٹر نے کہا۔ اوہ ویری گڈ ماسٹر، تم نے ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن تم نے نگرانی کا خیال رکھا تھا یا نہیں؟ ہاورڈ نے کہا۔ یس سر، ہم نے ہر طرح سے اطمینان بھی کر لیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ گڈ شو، اب بتاؤ کہ تمہارا اڈا کہاں ہے تاکہ ہم وہاں پہنچ جائیں، ہاورڈ نے کہا، تو دوسری طرف سے تفصیل بتا دی گئی۔ وہاں اڈے پر کون ہوگا؟ ہاورڈ نے پوچھا۔ میں خود وہاں ہوں گا جناب، آپ تشریف لے آئیں، ماسٹر نے کہا۔ ہم میک اپ میں ہیں، اسی لیے ہم آپس میں کوڈ طے کر لیتے ہیں، ہاورڈ نے کہا، اور دوسری طرف سے یس کہنے پر ہاورڈ نے کوڈ طے کیے اور پھر ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آؤ گوسٹی، لیکن پوری طرح ہوشیار رہنا، اسلحہ وغیرہ ساتھ لے لینا، وہاں کسی بھی لمحے کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہاورڈ نے کہا، تو گوسٹی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
टाइगर ने कार इमरान के फ्लैट के पास रोकी और नीचे उतरकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। उसने रॉजर और एंथोनी के बारे में रिपोर्ट देने के लिए फ्लैट पर फ़ोन किया, लेकिन किसी ने फ़ोन उठाया ही नहीं। हालांकि टाइगर जानता था कि अगर इमरान साहब मौजूद ना हो तो सुलेमान बहरहाल फ़ोन अटेंड करता है। उसने ट्रांसमीटर भी इस्तेमाल किया, लेकिन ट्रांसमीटर की कॉल भी अटेंड ना की गई। तो टाइगर कार लेकर खुद सूरत हाल मालूम करने यहाँ पहुँच गया था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर पहुँचा तो दूसरे लम्हे वो बेइख्तियार उछल पड़ा, क्योंकि फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था। हालांकि वो जानता था कि दरवाज़ा हमेशा बंद रखा जाता है। वो तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और चंद लम्हों बाद उसने किचन में बेहोश पड़े हुए सुलेमान को देख लिया। इमरान फ्लैट में मौजूद नहीं था। टाइगर तेज़ी से सुलेमान की तरफ बढ़ा। उसने उसे सीधा किया, फिर उसका नाक और मुंह दोनों हाथों से बंद कर दिया, क्योंकि उसकी कनपट्टी पर मौजूद स्याह निशान को वो चेक कर चुका था, जिससे जाहिर हो गया था कि उसकी कनपट्टी पर ज़रब लगाकर बेहोश किया गया है। वहाँ ट्रॉली मौजूद थी जिसमें चाय का अधूरा सामान मौजूद था। चंद लम्हों बाद जब सुलेमान के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे तो टाइगर पीछे हट गया। उसके हॉर्न बिंजे हुए थे, क्योंकि सूरत हाल वाकई अजीब थी और ये सूरत हाल उसकी हलक से नीचे नहीं उतर रही थी। इसीलिए वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उसे असल सूरत हाल का इल्म हो जाए। उसी लम्हे सुलेमान ने कराहते हुए आंखें खोल दी। सुलेमान, सुलेमान, मैं टाइगर हूँ। क्या हुआ तुम्हें? किसने बेहोश किया है? इमरान साहब कहाँ हैं? टाइगर ने झुककर सुलेमान को झंझोड़ते हुए बेचैन से लहजे में कहा तो सुलेमान एक झटके से उठकर बैठ गया। साहब सिटिंग रूम में थे। क्या हुआ? ओ वो आदमी वॉल्टर हिटसन, सुलेमान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा और उठकर खड़ा हो गया। क्या हुआ है? जल्दी बताओ, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। एक एक्रीमियन आदमी वॉल्टर हिटसन आया था। मैं उसे साहब के पास सिटिंग रूम में छोड़कर यहाँ किचन में आया ताकि चाय तैयार कर सकूँ कि अचानक मैंने सिटिंग रूम में किसी के गिरने की आवाज़ सुनी। अभी मैं चौंक कर बाहर जाने के लिए मुड़ा ही था कि वॉल्टर हिटसन किचन में दाखिल हुआ। उसने मेरी कनपट्टी पर ज़रब लगा दी। उसके बाद अब मुझे होश आया है। साहब कहाँ हैं? सुलेमान ने कहा। ओ, इसका मतलब है कि बास को अगवा किया गया है। जल्दी बताओ क्या हुलिया था उस वॉल्टर हिटसन का? टाइगर ने बेचैन से लहजे में कहा तो सुलेमान ने उसे हुलिया बताना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो हुलिया बताता जा रहा था, टाइगर के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभरते जा रहे थे। ओ, तो ये वाकई वॉल्टर हिटसन है, मास्टर के ग्रुप का। ओ, ये बात है, टाइगर ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ मुड़ गया। सुलेमान उसे आवाज़ें देता रह गया, लेकिन वो तेज़ी से भागता हुआ बैक वक्त दो सीढ़ियाँ उतरता नीचे पहुंचा और थोड़ी देर बाद उसकी कार तेज़ रफ्तारी से ब्राइट लाइट क्लब की तरफ उड़ी चली जा रही थी। ब्राइट लाइट क्लब का मालिक और मैनेजर मास्टर था, जो कारमन नजात था और असलहे की स्मगलिंग और ऐसे ही दूसरे जराइम में मुलविस रहता था। वॉल्टर हिटसन उसका खास आदमी था और पेशावर कातिल था। उसे स्कॉर्पियन कहा जाता था, क्योंकि वो दूसरों को गोली या खंजर से हलाक नहीं करता था, बल्कि उसके पास एक मखसूस अंगूठी थी जिसे वो उंगली में पहन लेता और अंगूठी में वो जहर या बेहोश कर देने वाली दवा भर लेता और फिर जब वो अपने शिकार से हाथ मिलाता तो ये जहर या बेहोश कर देने वाली गोली फौरी तौर पर उसके हाथ में इंजेक्ट हो जाती थी, जिससे उसका शिकार हलाक या बेहोश हो जाता था। सुलेमान ने ना सिर्फ वॉल्टर हिटसन का नाम लिया था, बल्कि उसने जो हुलिया बताया था वो 100% वॉल्टर हिटसन का था, क्योंकि वो इंतहाई वजी और शानदार शख्सियत का मालिक था और एक्रीमियन था। उसे देखकर कोई भी शक नहीं कर सकता था कि ये आदमी जराइम पेशा हो सकता है, बल्कि उसे देखने वाले उसे लॉर्ड समझते थे। और इमरान के फ्लैट से गायब होने का मतलब था कि वॉल्टर हिटसन ने अपने मखसूस अंदाज में उन्हें बेहोश किया और फिर अपने साथियों की मदद से वो उन्हें अगवा करके ले गया होगा। थोड़ी देर बाद उसकी कार लाइट क्लब के कंपाउंड गेट में मुड़ी और टाइगर उसे सीधा मेन गेट की तरफ ले गया। उसने पार्किंग में कार रोकने का तकल्लुफ़ ही ना किया था, यहाँ चूँकि वो अक्सर आता जाता रहता था, इसीलिए यहाँ का अमला उससे पूरी तरह वाकिफ़ था। हालांकि मास्टर भी उसका खासा बेतकल्लुफ़ दोस्त था। टाइगर ने कार मेन गेट के सामने रोकी और फिर नीचे उतरकर वो तेज़ कदम उठाता काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। मास्टर मौजूद है ऑफिस में? टाइगर ने काउंटर पर मौजूद नौजवान से मुखातिब होकर कहा। ओ नहीं जनाब, चीफ तो कहीं गए हुए हैं और बताकर भी नहीं गए, नौजवान ने मोतबाना लहजे में कहा, क्योंकि वो टाइगर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसकी आदत है कि वो किसी न किसी को बताकर जाता है। टाइगर ने कहा। जी हो सकता है कि राथर को बताकर गए हों, नौजवान ने कहा। अच्छा, वॉल्टर हिटसन कहाँ मिलेगा? मैंने उसे एक बड़ा काम देना है, टाइगर ने कहा। वो तो जी कल आपको मिल सकेगा, काउंटरमैन ने कहा। उसके लहजे में शरारत थी। क्यों, आज क्या हुआ? टाइगर ने चौंक कर पूछा। उसने चीफ मास्टर का कोई बड़ा काम किया है और सुना है कि चीफ ने उसे बहुत बड़ा इनाम दिया है, इसीलिए वो आज जश्न मना रहा है, काउंटरमैन ने कहा। कहाँ? टाइगर ने कहा और इसके साथ ही उसने एक बड़ा सा नोट निकालकर खामोशी से काउंटरमैन के हाथ में दे दिया। ओ जनाब, इसकी क्या ज़रूरत थी? हम तो वैसे ही आपके खादिम हैं, प्लीज़ मेरा नाम ना लें वरना वो मुझे डांटेगा। हिटसन कमरा नंबर 18 दूसरी मंजिल में 2 लड़कियों समेत मौजूद है और शराब का स्टॉक भी उसने कमरे में कर रखा है, इसलिए अब 1-2 रोज़ बाद ही वो बाहर आएगा, काउंटरमैन ने सरगोशी करने वाले अंदाज में कहा। उसने मास्टर का क्या काम किया है? टाइगर ने पूछा। पता नहीं जनाब, सुना तो यही है कि कोई बड़ा काम किया है, काउंटरमैन ने जवाब दिया। तो टाइगर सर हिलाता हुआ मुड़ा और तेज़ कदम उठाता बाएं साइड पर मौजूद राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया।
जहां असिस्टेंट मैनेजर रॉथर का ऑफिस था, उससे बहरहाल ये बात समझ में आ गई थी कि इमरान साहब को बेहोश करके अगवा करने का काम मास्टर के कहने पर हुआ है। लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि मास्टर ने ऐसा क्यों और किसके कहने पर किया है और अब वो कहाँ है। और यही बात सोचता हुआ वो रॉथर के ऑफिस में दाखिल हुआ तो लंबे कद और दुबले पतले जिस्म का मालिक रॉथर उसे देखकर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हल्की सी परेशानी के तासुरात उभर आए थे। ओ टाइगर, तुम आओ आओ, रॉथर ने उठकर बड़े बाहलाक लहजे में कहा। लेकिन टाइगर को उसके लहजे के खोखलेपन का एहसास एक लम्हे में हो गया था। मास्टर कहाँ है आर्थर? टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। चीफ अपने किसी ज़ाती काम के लिए गए हुए हैं और बताकर नहीं गए। आओ बैठो, क्या पीना पसंद करोगे? चलो, आज चीफ नहीं है तो कम से कम तुम्हारी ज़ियारत तो हो गई है, आर्थर ने मुस्कुराते हुए कहा। देखो आर्थर, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो, मैंने अभी और इसी वक्त मास्टर से मिलना है, इसीलिए बेहतर यही है कि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ है, वरना दूसरी सूरत में तुम्हें बहरहाल बताना तो पड़ेगा ही, टाइगर ने सर्द लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मुझे आर्थर को, आर्थर ने यकलहत इंतहाई गसीले लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे चटाख की आवाज़ से कमरा गूंज उठा और आर्थर मुंह पर टाइगर का जोरदार थप्पड़ खाकर चीखता हुआ साइड पर गिरा ही था कि टाइगर ने उसकी गर्दन पकड़ी और एक झटके से उसे घसीट कर साइड पर ले आया। और फिर इससे पहले कि रॉथर संभलता, उसने पूरी कुव्वत से साइड दीवार पर उसका सर दे मारा। बताओ वरना खोपड़ी तोड़ दूंगा, बताओ, टाइगर ने गराते हुए कहा। ज़रब इतनी ज़ोरदार थी कि टाइगर के हाथों में जदोजहद के लिए तड़पते हुए रॉथर का जिस्म यगलहर ढीला पड़ गया था और उसी लम्हे टाइगर ने उसके साथ 2 बार पूरी कुव्वत से दीवार से टकरा दिया। बोलो बोलो, वरना इस बार खोपड़ी तोड़ दूंगा, बोलो कहाँ है मास्टर? टाइगर ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। पब पब पॉइंट 3 पर, स्पेशल पॉइंट पर। रॉथर के मुंह से इस तरह अल्फाज निकले जैसे बगैर रॉथर की मर्जी के खुद बखुद उसके मुंह से फिसल कर बाहर निकल रहे हों। कहाँ है स्पेशल पॉइंट? बताओ। टाइगर की सर्द महरी मजीद बढ़ गई थी। मम मुझे छोड़ दो, मैं बता देता हूँ, शर्त यह है कि तुम मास्टर को नहीं बताओगे, रॉथर ने रुक रुक कर कहा। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे कोई नीम गनूदगी के आलम में बोल रहा हो और टाइगर इसकी वजह समझता था कि 2 बार दीवार से सर टकराने के बाद उसकी ज़हनी कैफियत धमाकों की ज़द में होगी। बोलो, सब कुछ बता दो जल्दी, टाइगर ने उसे एक सोफे पर धकेलते हुए कहा और इसके साथ ही उसने जेब से एक मशीन पिस्टल निकाल कर रॉथर की कनपट्टी से लगा दिया। स्पेशल पॉइंट लार्ज कॉलोनी की कोठी नंबर 101 है, वहाँ हिफाजत के जदीद तरीन इंतजामात हैं, मास्टर वहाँ गया हुआ है, रॉथर ने कहा। क्यों? टाइगर ने पूछा। माम, मुझे वाकई नहीं मालूम, सिर्फ चीफ ने इतना बताया था कि मैंने तुम्हें बता दिया है, रॉथर ने कहा। तो टाइगर ने यकलहट ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रॉथर की खोपड़ी कई टुकड़ों में तब्दील होकर सोफे और कालीन पर बिखरती चली गई।